guys, welcome back to my channel. I am Bhumika Medkan from Study at Amazement with Bhumika, and you are watching Study at Amazement with Bhumika. So stay tuned and watch the video till end. Don't forget to like, share and subscribe my channel. It's very important to subscribe it. Yeah? So today we are going to do chapter 2 of Geography class 8, land, soil, water and natural vegetation and wildlife resources. So we are going to start with this chapter. So please subscribe my channel. I am repeating this again. So let's start our chapter without wasting time. So our first topic is land. Let's start with that. So let's start reading. Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. So in this para they are saying that land is the most important natural resource. That means जो land है वो बहुत ज़्यादा important है हमारे लिए, और जो land है वो अर्थ का 30% एरिया कवर करती है, जिसमें से कुछ एरिया ऐसा है इस स्मॉल परसेंटेज का जो नॉन हैबिटेबल है, मीन्स कि वहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas, susceptible water, logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or inhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are densely populated areas of the world. इस पैरा में ये बताया गया है कि जो लैंड है उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर पॉपुलेशन की, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं या ऐसे हालात बन जाते हैं कि लोग वहाँ पे रह नहीं सकते. क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कई बार कुछ जगहों की, तो इससे कल्चर के लिए रैदर देन माउंटेन्स जो ज़्यादा लोग हैं वो प्लेन्स में रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ इजीली अवेलेबल है. Hence these are the densely populated areas of the world. That means जो plains होते हैं वो densely populated areas होते हैं world के. Next topic है land use. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. Now what is land use? Land is used for different purposes. As we all know that land is used for agriculture, forestry, mining, building up houses, roads and setting up of industries. This term is known as land use. इस चीज़ को बोलते हैं land use. The use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. So जो लैंड है वो काफ़ी फिजिकल फैक्टर से डिटरमाइन की जाती है, जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ द मेन रीज़न. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न. जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी, ये भी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लैंड की डिटर्मेंट्स हैं, लैंड के यूज़ की डिटर्मेंट्स है कि लैंड को कैसे यूज़ किया जाए. उसके ऊपर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो और जो टेक्नोलॉजी है उसका भी कुछ हद तक इफेक्ट है. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड और एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स whereas community land is owned by प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. सो इस पैरा में ये बताया गया है कि जो लैंड है उसे दो ओनरशिप में क्लासिफाई किया जाता है, एक प्राइवेट और एक कम्युनिटी. जो प्राइवेट लैंड होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है, और जो कम्युनिटी लैंड होती है वो कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है.
और जो कि कॉमन यूज़ के लिए होती है। जैसे कि कॉमन यूज़ के लिए मीन्स कि फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिकल हर्ब्स के लिए, उस जो वहाँ कम्युनिटी की जो लैंड होती है वहाँ पे उसे कम्युनिटी लैंड बोला जाता है। और जो ये कम्युनिटी लैंड्स होती हैं इनका सेकंड नेम है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सो कम टू द नेक्स्ट पैरा। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quantity of land also differs from place to place. People started encroaching houses, complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructive activities. So in this para they are saying कि जो लोगों की डिमांड्स हैं वो एवर ग्रोइंग है, कि लोगों की डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है। जो लैंड की क्वालिटी है वो भी प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती है। लेकिन अब जो लोग हैं वो लगातार कमर्शियल एरियाज़, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अर्बन एरियाज़ में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है, कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू कर दिए हैं और अपने एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड करने के लिए रूरल एरिया ऐसे कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में। जो लैंड डिग्रेडेशन है और लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, ये काफ़ी बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसको एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है या थ्रेट पोज होता है उसे। क्योंकि इससे क्या है, जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उससे जो हमारी लैंड है वो कम होती जा रही है। सो now our next topic is conservation of land resources. Now conservation of land resource. Growing population and their ever growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertilizers to check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. So इस पैरा का समरी ये है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और जो उनकी डिमांड्स हैं उससे काफ़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है फॉरेस्ट कवर को और फर्टाइल लैंड को, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसके ख़त्म होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से फॉरेस्टेशन या लैंड रिक्लेमेशन है या जो केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है उसके ऊपर एक चेक रखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो हम लैंड को कंजर्व कर पाएँ। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ सॉइल. So come to this para please. So guys, what is soil? Soil क्या है? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. एक thin grainy substance है जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करता है, उसे soil बोलते हैं. It is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens ये बताया गया है कि जो सॉइल होती है वो लैंड से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होती है. जो लैंड फॉर्म्स हैं वो सॉइल की टाइप को डिटरमाइन करती हैं. जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से बना होता है और ये जो सॉइल है ये वेदर्ड रॉक से बना होता है जो कि रॉक्स की वेदरिंग प्रोसेस से बनता है. जब सॉइल राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से बनता है तो वो सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाता है. सो प्लीज़ नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Guys, this page is about landslides and you have to read this para on your own. So let's move to the next page. If you have any kind of query,
related to this para, please tell me in the comment box. I will try to solve it. So guys, here we are giving with soil profile that you have to read it. So let's come to the do you know paragraph. We are now going to read this one. It takes 100 of years to make just 1 centimeter of soil. 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. सो नेक्स्ट वी आर विथ फैक्टर्स ऑफ सॉइल. Factors. Other factors are topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के वो क्या हैं? पहला है पेरेंट रॉक और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स. जो ये फैक्टर्स हैं उनमें टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और जो टाइम है लिया गया सॉइल फॉर्मेशन के लिए उसकी कंपोजिशन है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती हैं. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस टेबल. सो फर्स्ट, पेरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, पेरिमेबिलिटी. जो पेरेंट रॉक है वो कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करती है. मिनरल्स, जो कंटेंट है वो सब कुछ पेरेंट रॉक डिफ़ाइन करती है. नेक्स्ट है रिलीफ. रिलीफ क्या होता है? एल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. इससे हमें उसकी ऊंचाई का पता चलता है. नेक्स्ट है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इससे पता लगता है कि जो ह्यूमस का रेट क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट. नेक्स्ट है टाइम, कि सॉइल बनने में कितना टाइम लेती है. डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. टाइम से हमें पता चलता है कि जो सॉइल की थिकनेस है सॉइल प्रोफाइल की वो क्या है. नेक्स्ट है क्लाइमेट. क्लाइमेट से हमें टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट का पता चलता है वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन की. राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ. सो गाइस, कम टू द नेक्स्ट पेज. Degradation of soil and conservation measures. So let's start reading. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो सॉइल इरोशन है और जो डिप्लेशन ऑफ सॉइल की उसकी वजह से जो सॉइल है एज अ रिसोर्स उसे काफ़ी बड़ा थ्रेट लग रहा है. मीन्स कि उसे झटका लग रहा है. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स, इन दोनों की वजह से सॉइल की डिग्रेडेशन पॉसिबल है. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers और pesticides, rainwash भी हो सकता है, landslides और floods. कुछ methods हैं जिससे soil को conserve किया जाता है, वो नीचे हमें दिए हुए हैं. Mulching. The bare ground between plants, it is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. So I am going to show you the picture of it. So guys, this is the way in which mulching is done. So guys, next topic is counter barriers. Stones, grass, soil are used to build barriers along counters. Trenches are made in front of the barriers to collect water. So guys, this is the pic of counter barriers. Stone, grass, soil are used to build barriers along counters. यहाँ पे ग्रास से बैरियर बना हुआ है. सो नेक्स्ट इज रॉक डैम. रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. जो रॉक डैम होते हैं उनसे जो सॉइल लॉस है उसको बचाया जा सकता है. सो गाइज, दिस इज द पिक ऑफ रॉक डैम which helps to prevent soil erosion.
So guys, next is terrace farming. Broad flat steps on terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. जो टेरेस फार्मिंग होती है उस पे क्या होता है कि टेरेसेस पे फार्मिंग होती है स्टीप स्लोप्स की टेरेसेस पे, जिससे क्या होता है कि जो पानी का रन ऑफ है उसे भी बचाया जा सकता है और जो सॉइल इरोजन है उसे भी। इस टाइप से होती है टेरेस फार्मिंग। इट इज़ डन इन दिस वे। आई होप you may understand terrace farming. So let's see its pic on internet. Terrace farming is done in this way, as you could see. So guys, next is intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो ऑल्टरनेट रोज में ग्रो की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो रेन वॉश है उससे सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाए। सो गाइज, दिस इज़ द पिक ऑफ इंटरक्रॉपिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रोज। सो गाइज, नेक्स्ट इज काउंटर प्लोइंग. Plowing parallel to the counters of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. जो काउंटर बैरियर्स होते हैं वो साथ साथ में बनाए जाते हैं, जिससे क्या है जो वाटर का फ्लो है उसे स्लो डाउन किया जा सके। जो काउंटर प्लॉइंग है वो इस वे में होती है। So guys, next is shelter belts. So in the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. जो coastal और dry regions होती हैं वहाँ कि जो ट्रीज़ हैं वो एक ही रो में ग्रो किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो का जो पार्ट 1 है वो फिनिश होता है। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और आई थिंक इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बनेंगे। आई होप यू मे अंडरस्टैंड द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़। Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe. Thank you guys. See you in the next video.